The topic that I am addressing today, let me just quickly give you my, sir ने तो कुछ बताया ही है. होता क्या है कि whenever we enter in an organization, I had my degree in PhD from JNU in literature, background masters in literature with linguistics as specialization. But then sometimes you are given multitasking job profiles. वो आपको task दिए जाते हैं which might not be related to your subject area. So being a student of literature and linguistics, I was given the task of placement officer. So वो भी literature का बंदा and going for placement of engineering, MBA and BCA. You can understand, when I joined, where I did not know even the ABC of placement. So for me, this journey did not start as a TPO. I was not a TPO. I was the institute placement head. So they believe that with a person who is good at communication skills or social interaction or with a great number of connections, so might be able to connect the corporate world, the academicians and the students. So initially, I was trembling or shivering, how will I be able to justify the job? But somehow then it so happened that when I left the college and joined this government university, so there was a NBA inspection. And after rehearsal of 10 days, the new TPO could not represent the college. They had to call me कि भारती आपके बिना कोई convince नहीं कर पाएगा इनको. So I had to go there. So this is all that whenever we get different types of jobs which might not be related to our profile, so we should take them as a challenge. Now I have hundreds of companies on my fingertips and I feel so empowered that even though my area today is different, that is agriculture, but यहाँ पे भी मैंने आते ही पहला, because this is a newly established department, तो आते ही हमने in the very first semester I started the certification course, जो कि अभी चल रहा है हमारा. That is 1 week certification course on communication skills and personality development. So first, we all know that end product of any education is the placement or the employability of students, whether this be startup, this be higher education, going abroad or competitive exams. So I start with the सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि when we get the students nearing placement or when they get in the college and their parents they come for admission के बारे में बाद में पूछेंगे. First thing they ask is what is the placement of your college, what is the highest package, what is the minimum package, and they always make me sit there as a counselor. तो सबसे पहली बात मैं उनसे पूछती हूँ कि though I am being the institute placement head, my question is why do parents, जबकि बच्चे की लर्निंग शुरू नहीं हुई है, why are they worried so much about placement? My question would be more like, आप क्यों चाहते हो कि by the time your student is going to complete BTech कि वो कमाने लग जाए? Are you not able to sponsor his education further? Can't he go to abroad for higher studies? Can't he prepare for competitive exams? आपको क्यों लगता है आते ही हमारा बच्चा by the time you complete your BTech और MBA वो कमाने लग जाए, घर में पैसे आने लग जाए? आप क्यों ये सोचते हो कि वो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय बने? Why don't you give him the vision that he should be an IS officer, IPS officer, where he will have hundreds of people working under him and he will be making policies for the country? तो उनका आते ही ये प्रोग्राम होता है कि कॉलेज प्लेस करा दे, प्लेसमेंट हमें मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कितने लाख की मिल जाए. सो फर्स्ट आई नीड टू चेक देयर माइंड. Why are they thinking about it and putting the entire responsibility of placement on the college? I start with a story here. We are 4 sisters and 1 brother. My brother is the youngest in the family, and in a bad company in class 9th he failed. And my father was being a bank manager. वो बड़े परेशान हो गए कि एक ही तो लड़का है और ये फेल हो गया. तो then he is kind of, तुम्हें खेतों में चाचा के पास भेजूंगा वहां काम करना. And then we left him with a science teacher who had उन science teacher को उनके घर मैं और मेरी mother गए, and he was teaching some 6-7 students in his room. So my mom asked him, like बच्चे को उन्होंने भेज दिया, and there was a young cute little girl. She came with a plate of water glasses. So my mother asked him, like, where is your mother or father, your parents? He said, I lost my parents. And who is this girl? She is my sister. तो मैं इसको पढ़ा भी रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ. And we left our brother with him. And in 2 years, my brother was a city topper in class 12th.
एंड उसके बाद फिर उसने जो गलतियां की, ही हैड दैट सेटअप इन हिज माइंड दैट प्लेसमेंट और नौकरी, that means that you are working in a corporate job with your flashy cars surrounded with fluent English speaking people. That was his perception of a job. So when he completed his BTech from Peck Engineering College, Chandigarh se, and he joined a private company, Flo Daniel Gurgaon, there he, I should say, wasted his 3 years because he was very competent and he was a gold medalist. Then one of his friends was preparing for competitive exams और उसका हरियाणा सिविल सर्विसेज क्लियर हो गया था. तो my brother went to visit him in his office and he saw hundreds of people saluting that young man. And when he came back, he was heartbroken and he asked me, "Can you wake me up at 5 o'clock?" मैंने कहा 4 बजे क्या जिम जाओगे? He said, "No, no, I am preparing for competitive exams." मैंने कहा कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे सरकारी नौकरी, your dusty rooms, broken chairs and all that. Now what went wrong with you, Rahul? He said, "No, no, I lost my track and I need to prepare for competitive exams." And he started preparing. And in the first attempt, he cleared Haryana Civil Services with rank 3rd. ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि बच्चों को विजन ही क्लियर नहीं है, पेरेंट्स को विजन क्लियर नहीं है कि उनके बच्चे में क्या कैपेबिलिटीज हैं, उनको किस चीज के लिए उनको ट्रिगर करना चाहिए, किसको उनको डायरेक्शन देनी चाहिए. Dr. Bharti, I am tempted to share one thing. I usually say, if you remember in my previous course also, there was never a time when there was no employment. There was never a time when there was no employment. There is no time when there is no employment. And there will never be a time when there will not be any employment. If you are employable, there is employment. And Dr. Bharti, I am tempted to share the story of my daughter also. You know, my wife is a gold medalist in Punjab University in mathematics. And Yes, I being an engineer, myself, we did do the reasonably good mathematics. It so happened that, you know, when my daughter was very young, she must be in 3rd class or 4th class, we had to go to USA to visit my sister. She lives in Chicago since 81. When we gave a call to my parents, they said that her name is Mehak. Mehak to mathematics mein fail hogi. My wife said that I will suicide now. हमारी बेटी मैथमेटिक्स में फेल होगी. तो 3rd class में, that is the foundation years of the studies. And then, you know, she was very, very reluctant when we came back, and she passed somehow in 3rd class or 4th class. ऐसे करते करते चली गई. But she was very reluctant to do the mathematics. She was very good in literature. I was very happy that she is good in literature, and I wanted her to take admission in literature because I have love for literature myself. I said, okay, my son is in IIT, so let her pursue the literature. But then suddenly she took a 180-degree turn, and she said, okay, I will do engineering. I'm talking about the confused state of mind in that age. She said, okay, I will do engineering. If Varun can do it, I can do it like this also. And she got it also. And I'm talking about mathematics. She had the options in all the BITS planning and in IITs also, but then she chose to be in IIT, BITS planning only. And there she took MSc mathematics as a major. MSc mathematics. And she topped in her batch. Oh my God. I mean, we do not know. Wonderful. At that time, I mean, 3rd में mathematics में fail होगी और 9th she was not looking at the mathematics, but then in 11th, 12th, she developed the taste. It is just like that, you know, when I am tasting the food first time, I may not like the taste. Small children do not like many foods. You have to develop that taste in them. They have the taste buds in them, but then they need to be exposed to that. Please carry on. Sorry to interrupt you. It was interesting. It added to the story was very, very similar, and the confused state of mind of the parents as well as the students in that age is very important. Very important. So, to the other participants also, I want to ask you a question that all of us, we are teaching, and the students are worried about placements. What is their perception of placement? जब वो बात करते हैं आपके कॉलेज में, what do they think of placement? Placement का मतलब क्या है? मतलब आज मैं पूछती हूँ किसी बच्चे को
जिसने कंपनी नहीं देखा है, फॉर हिम प्लेसमेंट विल बी मैम इट शुड बी 20 lakhs प्लस पैकेज, इट शुड बी 10 lakhs प्लस पैकेज. वो पैकेज पे आके सब लिमिट कर देते हैं. पेरेंट्स ऑल्सो आस्क व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज. आई एम आस्किंग यू, those who are somehow related to a placement or maybe engaging students regarding placement, what is their perception about placements? Anyone of the participants can comment on that. Actually, what madam is saying, that is correct. Most of the students, when they are coming to any professional degree course, they have only one thing in their mind, that this should be the package. If I am going to X institute, I want this much package, and if I am going to Y institute, this should be the package, and they are focusing only on that. And the example that you have cited, ma'am, that was really wonderful. Really, students are not aware to find out exactly where they need to land up, and they need to look into their core competencies, what their competencies are there. अल्टीमेटली वो जो हनुमान वाली कहावत भी है और जो सुनाई थी सर ने भी परसों, कि ये बताना पड़ता है कि आप में कैपेबिलिटीज क्या है, कभी भूल जाता है. तो जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, और जो इसमें इम्पोर्टेंट आप बता रहे थे कि जो टीचर्स हैं उनका रोल बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि जब तक वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए अपने आप को अपनी फील्ड में नहीं जा सकता. वहां पे लिए उसको राइट डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है. थैंक यू मैम, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्टली, आई डू एग्री टू दैट. सर मेरी पावर पॉइंट विजिबल है स्क्रीन पे? या इट इज विजिबल मैम. ओके, यस मैम, इसको आप ना बुक रीड पे कर लेंगे तो फिर ये यू कैन चेंज द साइज एनीवे. इसको इज इट नाउ फुल स्क्रीन सर? अभी या इट इज ओके मैम, यू जस्ट प्रेस F5, आई थिंक देन इट विल बी फुल स्क्रीन. I made it full screen from my side. Yeah, but कभी कभी नहीं होती, but it is readable, ma'am. Yeah. Okay. So I give you another example. हम जब किसी स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स they visit some school for admission of their kids, तो वो क्या देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पे 90% कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 90% एंड अबव, एंड दे गेट द आइडिया कि हाँ 10 बच्चों के 90 एंड अबव हैं तो द स्कूल मस्ट बी वेरी गुड. Then we do that calculation, how many students got more than 80% or 70% or 60% से तो नीचे कोई है ही नहीं, and then we come to the conclusion that it is a very good school. But when we look at the notice board with the number of students who got more than 90 and we put it on the school, that they make sure that our kid is also getting 90%, वो तो नहीं हो सकता. बोर्ड में 90% लगे हैं तो हमारे बच्चे को भी वो स्कूल क्योंकि लगे हैं, उनकी जिम्मेदारी है 90% वही दिलाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. 90% वो बोर्ड पे हमारे बच्चे का नाम हमने देख तो लिया कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स हियर ऑन द बोर्ड एंड वी सी एनालाइज द एंटायर रिजल्ट, बट हाउ टू गेट दैट 90%? It depends on one, the school, second, the parents, third, the student. So it is the similar case with the placement. When the parents come to me and as a placement counselor, they ask me kya highest package hai, I'm like, this is not my entire responsibility or the responsibility of the college to place your kid with 90% if he's not doing good in studies, if he's not doing career counseling session, corporate connect programs or certification courses. इसमें तो हम तीनों का रोल है. तो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दूसरा जो अभी सर ने बताया था, सतीश सर ने, कि प्लेसमेंट को वो लोग हाउ डू दे एनालाइज प्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन द हाईएस्ट पैकेज, डिपेंडिंग ऑन द एवरेज पैकेज, ये कितना गया और आपका मिनिमम पैकेज कितना गया. नाउ हियर दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स. आई नाउ हियर एक्सप्लेन कैसे हम किसी कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट बताते हैं, ग्रेट प्लेसमेंट बताते हैं. वन, highest placement can never define the excellent placement of a college. I had this girl, Aanchal Tiwari. Aanchal Tiwari came to my college with already 98% marks in class 12th. She was a university gold medalist in all her BTech first year, second year, third year. अब उस बच्ची के तो 40 लाख प्लस आएंगे ही. She got placed in IBM. She got placed in 4 companies. Now I did not do anything. बट दी क्रेडिट किसको गया? वो पूरे कॉलेज को गया कि हमने आंचल तिवारी को जो है इतने लाख की प्लेसमेंट करा दी. बट इंटरनली हमें पता है कि वी डिड नॉट डू एनीथिंग. इट वाज हर एफर्ट बिकॉज शी वाज ऑलरेडी दैट कॉम्पिटेंट टू गेट 40 lakhs प्लस पैकेज. So highest package can never be a definer or cannot explain the quality placement of a college. इसके बाद हम क्या देखते हैं? हमें देखना चाहिए कि जैसे यहाँ उन्होंने 90% एंड अबव देखे हैं, हम देखेंगे कि 10 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर कितने बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं.
So if, for example, I have 5 BTech sections in my college and 5 students got more than 15 lakhs package, उसमें भी मैंने कुछ तीर नहीं मारा, क्योंकि हर क्लास में एक टॉपर बच्चा होगा, उस टॉपर बच्चे के तो 15 लाख से ऊपर पैकेज होगा ही होगा. But if we have around 20 or 25 students who got more than 15 lakhs plus package, so definitely the college has made substantial efforts for the placement of students. उसके बाद हम देखते हैं आज के दिन पेरेंट्स कहते हैं 100% प्लेसमेंट नहीं है जी आपके यहाँ. अब 100% प्लेसमेंट तो किसी, इफ यू टेल देम द डेटा ऑफ IITians, लुक एट द डेटा ऑफ IIT में भी बच्चों के यू हैव 80 to 85% प्लेसमेंट थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि हर क्लास में वी हैव सम पीपल जिनके पेपर क्लियर नहीं हुए हैं. हर कंपनी को दे नीड minimum 65% throughout with no backlog. But every time any college, any university, we have some backlog of say 6 students, 10 students, उनको कंपनी लेगी ही नहीं. So they cannot say 100% placement. Second, not everybody is willing to go for placement. As I told you, some kids are going abroad, some kids are doing their own startup. So other thing is that how the colleges, because a competitive environment hai, private colleges hain, they have to show their numbers, so they call some call centers. Call center, it's like, पहले we need to carry our technical appliances in the market. फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया है. Now what do? हम लोग कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं. तो आज के दिन कुछ भी है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो कस्टमर केयर में we have thousands of jobs both in Hindi and English language, irrespective of the field in which you are studying, whether this is engineering or medical or agriculture, they will take you as a customer care. उस एक कस्टमर केयर में वो 50-50 बच्चों का प्लेसमेंट दिखा देते हैं, and then they say that we had very good placement. So we need to take this thing in mind. उसके बाद जो है, इसके लिए क्या चीज है हमें देखना है कि हमारे कितने बच्चे जो सेकंड मेजर पैराफर्नेलिया और the ground of placement, that is how many kids got placed in core company. Core company क्या होता है? Say for example, if a kid is doing computer science, if he is getting a job in programming, similarly जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा है, वो उसको जो है सर्किट ब्रांच में मिल रहा है. प्रोडक्शन वाला बच्चा है, मैकेनिकल वाला है, सिविल वाला है, is getting job in construction and production, so that is their core area. I give you another example. For example, we have a company like Byju's. Byju's के 3 प्रोफाइल हैं. One, we are selling the Byju's app in the market, so that is marketing job where the MBA students can fit in. Second, we are a tutor at Byju's. We are teaching mathematics or physics or chemistry, so that is another profile that will get you around 6 lakhs per year, 50,000 per month. Then there is another profile developing that app of Byju's, making it user friendly, उसको अच्छे से accessible कर पाए, उसको हर प्लेटफॉर्म पे वो चल सके, उस पे compatible हो. So this is the job of a computer programmer. So this is called कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उसको अगर मार्केटिंग की जॉब आपने दे दिया, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब तो हर किसी की, तो ही इज नॉट गेटिंग द कोर कंपनी. So second thing, when we look at placement in a college, we need to check कि whether these students they got placed in a core company. उसके बाद फिर आपका जाता है कि students placed in multiple companies. अब you will see the placement policy of a college. They will say कि क्योंकि हमारे कॉलेज में if we say we have 260 students हैं, अगर if we say that I will get each child 2 placements, 520 jobs आज के दिन में पैदा करना, it is next to impossible. We can be the employment minister. So I clearly tell the parents कि आज के दिन आपके बच्चे को एक जॉब मिल जाए, वो बहुत बड़ी चीज है. But then there is another policy that says that if there is a gap of 5 lakhs, then the kid can apply for the second opportunity. पर यहाँ पे एक अगर हम कॉलेज की तरफ से एज ए इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आई टेल यू कि फॉर एग्जांपल हमारी बच्ची ये जो आंचल तिवारी है, शी ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड इन सैमसंग. अब कॉलेज में IBM आ रही है, यूनिवर्सिटी ने IBM निकाल दिया है. IBM में यू नीड थ्रू आउट 75% बच्चे के मार्क्स चाहिए. 70% वाला बच्चा बैठ ही नहीं सकता है. नाउ आई नो दैट अगर मैंने आंचल तिवारी को IBM में नहीं बिठाया, सिमिलर अदर किड्स दोस हु गॉट मोर देन 70 बट दे ऑलरेडी गॉट प्लेसमेंट, तो मेरे पास IBM का ब्रांड नहीं आएगा. मुझे अपने कॉलेज में ब्रांड दिखाना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क आंचल तिवारी एंड अदर किड्स टू अप्लाई फॉर IBM. सो दिस वे यू गेट सम स्टूडेंट्स दोस हु विल गेट मल्टीपल प्लेसमेंट्स. तो ये देखा जाता है कि मल्टीपल प्लेसमेंट से दैट द कॉलेज इज रिसोर्सफुल, वी आर प्रोवाइडिंग
different types of multiple job opportunities to the students. So that shows कि आप कितना enriching placement, कितना strong placement आपका है. Next, हम देखते हैं कि हमारे पास students placed among top 50 companies. These are called how many students they got placed in brands. Brands, can you tell me a few brands? आप जब कहते हैं कि मैम ये ब्रांड्स हैं बीटेक में, इनमें बच्चे होने चाहिए, एज टीचर्स कैन अ फ्यू ऑफ यू टेल मी अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर जॉब्स ब्रांड्स इन द मार्केट, वी से कि हाँ ये तो अच्छी प्लेसमेंट है. आज के दिन कौन से ब्रांड्स जॉब्स में ज्यादा चल रहे हैं? आप जिस भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड इन विच यू आर टीचिंग, सो आपके कॉलेज में कौन से आप कह रहे हैं कि दीज ब्रांड्स आर वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, उनकी जॉब के लिए वो बहुत दे आर क्रेविंग फॉर दीज जॉब प्रोफाइल्स? जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि Amazon का पैकेज चल रहा है 44 lakhs का. So some companies like Infosys, TCS, Wipro, Deloitte, HCL, these are called brands. यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं सोचता है. ब्रांड्स का मतलब होता है कि there is recession in the market, अप डाउन है, वो कंपनी उनको निकालेगी नहीं, their salary scales will not be affected, and एक उनका एक पैरामीटर्स चलते हैं कि इतना इंक्रीमेंट तो बच्चे का होगा ही होगा. तो the kids nowadays they are happy, they are happier, they want to go for brand companies. So these are like ये brand company irrespective of, जैसे बीटेक में ये चल रहा है आज के दिन, Amazon से आ जाते हैं हम, ये Infosys, TCS, Wipro, Deloitte, ये जो है कंपनीज आपकी आ जाती हैं. तो there could be different brands for MBA students. For example, they can apply for ICICI Bank, HDFC Bank. हम इन बैंक्स का नाम कहीं जाके ले. ब्रांड का मतलब होता है कि हम मार्केट में किसी से उस जॉब का जिक्र करें तो उनको उस जॉब का पता हो. ये नहीं कहे कि मुझे नहीं पता HDFC क्या है, विप्रो कहाँ है, आई डोंट नो. सो दीज आर कॉल्ड ब्रांड्स. नाउ क्या हमारे बच्चों में कॉलेज जब यूनिवर्सिटी आती हैं तो दे डू जैक इंस्पेक्शन, जॉइंट एकेडमिक ऑडिट होता है, तो दे विल आल्सो सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे गॉट प्लेसमेंट इन इंटरनेशनल कंपनीज. क्या हमारे बच्चे को इंटरनेशनल कंपनी में भी गए हैं? तो IBM में बच्चे गए हैं, सो दे विल गेट अनदर 10 पॉइंट्स कि हाँ इनका बच्चा इंटरनेशनल कंपनी में इतने बच्चे प्लेस हुए हैं. सो जैसे टॉमी हिल फिगर है, मेनी स्टूडेंट्स ऑफ इसमें MBA वाले बच्चे इसमें जाते हैं. सो दीज आर दिस इज हाउ वी सी द क्वालिटी प्लेसमेंट इन ए कॉलेज. सो द हाईएस्ट पैकेज, द मिनिमम पैकेज कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द क्वालिटी प्लेसमेंट इन ए कॉलेज. तो हमें ये सब देखना है कि कितने बच्चों के 15 लाख से ऊपर हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे गॉट core company placement, how many students got placed in brands companies, brands आपके कितने लिखे हुए हैं वहां पे, कितने बच्चों की multiple placements है, कितने बच्चे इंटरनेशनल कंपनी में गए हैं. Now there are a few factors also affecting placement. Placement ऐसा नहीं है कि this is a two-way channel, हमने कर दिया और बच्चों को मिल गया. There are a number of factors affecting placements. For example, we had this very big happening, historical event in the history of India. What was that? Demonetization. Can you tell me, when we had demonetization, which specific kinds of jobs and streams in academics it affected very badly? Demonetization का कौन सी जॉब प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा खराब प्रभाव पड़ा है? Participants, can you tell me few areas, disciplines, fields where demonetization affected very badly the job market? Service sector. Service sector, yes. Which kinds of jobs, especially? Banking, finance, ma'am. बैंकिंग में थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन तो हो गया था, दो इट वाज नॉट बैंकिंग, दो एवरी सिंगल एरिया वाज अफेक्टेड, बट कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म ही हो गई, मतलब दे बिकेम नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन. कैन यू रिकलेक्ट दैट स्पेसिफिक टाइम एंड देन टेल मी कि वो कौन से जॉब थी जो लोग बिल्कुल रो रहे थे, घर पे बैठे थे कि हमारा तो कारोबार ठप हो गया डीमोनेटाइजेशन से? Just like the rickshaw puller, the contract laborers, labor class. Yes. Yes, ma'am, your voice was not clearly audible.
Ma'am, people have put in the chat box real estate, जी construction. जी, very good, yes sir. So I'm okay. Okay, real estate construction. So yes, I tell you that क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ये सारा खत्म हो गया, इट वेंट टू स्टैंड स्टिल, सो इट अफेक्टेड स्ट्रीम्स लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल. और अगर आपको होटल इंडस्ट्री भी याद हो, बिकॉज द फूड वाज नॉट सप्लाइड, यू नो, दे स्टॉप दैट वी कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड परचेज. तो होटल मैनेजमेंट कोर्स, और अगर आप बीटेक में आज के दिन जाके देखते हो, 90% colleges surrendered mechanical, civil and electrical. Crores of the labs, the money spent on the labs, it went like anything. हमारे कॉलेज में मैकेनिकल था, सिविल था, इलेक्ट्रिकल था. आज के दिन कोई बच्चा जिसको पैशन भी है मैकेनिकल का, सिविल का, आता ही नहीं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज मार्केट में उसका इफेक्ट आज तक इतना है कि जॉब्स ही नहीं है, सैलरीज आर वेरी लो. सो मैकेनिकल सिविल को बिल्कुल खत्म कर दिया मार्केट में, एंड द डिग्रीज नो वन वाज इंटरेस्टेड. कोई मतलब इतना बैड इफेक्ट उस सेक्टर पे पड़ा है, प्लस एकेडमिक्स पे पड़ा है कि ये डिग्री अब एग्जिस्ट करनी ही बंद हो गई है. वेरी फ्यू कॉलेजेस जिसमें, क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहे, तो व्हाई वुड दे रिक्रूट फैकल्टी. सो इन माय कॉलेज वी सरेंडर ऑल दीज ब्रांचेस. देन उसके बाद हमारे पास कोविड आया था. कैन यू टेल मी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द जॉब मार्केट? How did COVID influence the job market and particular sectors of the economy? COVID का क्या प्रभाव पड़ा? Can the participants relate to that? What happened during the time of COVID? कौन सी ब्रांचेस को ज्यादा बूस्ट मिला, और बिल्कुल ऐसे जो पहले था नहीं, एकदम से इमर्जिंग होकर के आई है, एंड नाउ यू सी दीज ब्रांचेस ऑल ओवर. दे डिफीटेड इवन ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस. कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम? Ma'am, acceptability to work from home. Yes, work from home, very nice. That is the development of digital platforms, requirement of digital platform. Yes, very good. What else? Pharma sector expanded. Yes, very good. और कोई बताइए. कोविड से तो I think मतलब during COVID time लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री थी उनको पे बहुत प्रभाव पड़ा उनका, because labor was not coming to the works and for a long time. एक और चीज भी है सर, मैं जैसे बताती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बच्चों में एक क्रेज है कि हाँ कुछ हो या ना हो, हमें कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है. पहले कंप्यूटर साइंस के साथ एक ब्रांच आती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ विद कोविड एंड डिजिटलाइजेशन एंड द इम्पैक्ट की बाहर से भी इम्पैक्ट आया है. आज के दिन अगर हम बीटेक की ब्रांचेस को देख रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन बूम एवरीवेयर. सीएस का बच्चा भी आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो ब्रांचेस हैं जो पहले कभी एग्जिस्टेंट नहीं थी, इन ब्रांचेस ने कंप्यूटर साइंस को डिफीट कर दिया है आज के दिन. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी लाइक, इधर जितनी भी आईटी कंपनीज है 80% ऑफ देम साइबर ग्रुप कंपनी है, जहां पे सारे प्रोजेक्ट जो पहले कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग के ऊपर होते थे, नाउ देयर 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, AIML, IoT, SAP. तो सीएस का बच्चा सीएस की नॉलेज से उन पे स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है. He has to learn artificial intelligence, otherwise he will not be able to compete and survive in the market. अब वहां तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गया और कोविड ने बिल्कुल नया एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, SAP, IoT बिल्कुल लाकर के मार्केट का सिनेरियो ही चेंज कर दिया कि बच्चा देख ही नहीं रहा है कि सीएस का बच्चा कह रहा है मैडम क्या आप मुझे सीएस के साथ AI दे सकते हो. अब some colleges like ये APJ कलाम यूनिवर्सिटी, they have started computer science with AI. अब इसको compete करने के लिए GGSIP ने क्या किया है, they have introduced another branch CST. तो पहले क्या बच्चा जाता था कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट कंप्यूटर साइंस का बच्चा आईटी में जॉब नहीं कर सकता,
आईटी वाली कंपनी सीएस के बच्चे को नहीं लेती थी, तो उन्होंने कंबाइंड ब्रांच चला दी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ही विल स्टडी कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो प्लेसमेंट पे बहुत जबरदस्त पड़ा है. कुछ जॉब्स जो हैं, और अगर इवन आई टेल यू सर, हमने 120 सीट्स का होटल मैनेजमेंट का कोर्स लिया था, और उस कोर्स को लगाने के लिए हमारे कॉलेज ने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे. इट हैपेंड मच बिफोर कोविड टाइम, क्योंकि उनको सर खाना बनाने की मशीनें, उनको पूरा होटल एस्टेब्लिश करना होता है, और पूरी जहाँ पे रेस्टोरेंट लगाना होता है, पूरा करके हमने मतलब पूरा एआईसीटी को कन्विंस किया, यूनिवर्सिटी को कन्विंस किया. आईपी में सिर्फ एक ही कॉलेज था होटल मैनेजमेंट का, फिर सेकंड कॉलेज वाज आवर कॉलेज. और आप हालत देखोगे कि कोविड के टाइम में हमारे कॉलेज में 20 सीटें नहीं हुई, 120 में से 20 बच्चों ने भी एडमिशन नहीं लिया. और द crores of money, 3 crores that we spent, it again went in water. My college surrendered again this hotel management, BHMCT, Bachelor of Hotel Management and Catering Technology. तो कोविड यानी मार्केट का सिनेरियो इतना पावरफुल है कि दे रिक्रूटेड फैकल्टी, दे गॉट सैंक्शन फ्रॉम एआईसीटी एंड गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. पूरा सेटअप किया, पूरा उनका वो एआईसीटी वाले लोग इंस्पेक्शन के लिए आए, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की, मैंने खुद प्रेजेंटेशन की, और आज उनको कोर्स की हालत ऐसी है कि उनके पास 20 बच्चे नहीं है. तो दिस इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट. नाउ आज के दिन कुछ जॉब जो है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज इन द कंट्री दैट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद इज आईटी हब, नोएडा, जैसे वी वर इन ग्रेटर नोएडा, सो नोएडा इज अ हब ऑफ आईटी कंपनीज, 80% ऑफ इंडियन कंपनीज दे आर इन नोएडा. तो मार्केट का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आपके आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट कैसी हैं. देन वी हैव मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज. अगर आप प्लेसमेंट में हैं तो सिर्फ आपको प्लेसमेंट नहीं कराना है, आप प्लेसमेंट को कैसे रिसोर्सफुल और एक्सपेंड करेंगे. जैसे इफ आई एम इन नोएडा, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर आप, हमारे यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी है, जीएल बजाज है, गलगोटिया है, गौतम बुद्धा है, बेनेट खुल गई है. तो अराउंड 8 तो नई यूनिवर्सिटी हैं, फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ कॉलेजेस. तो अगर कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो दे विल नीड एटलीस्ट 500 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स. अब मेरे तो एआई में 60 बच्चे हैं, एआईएमएल में 60 बच्चे मेरे एआईडीएस में हैं, आईओटी में भी मेरे 60 बच्चे हैं. तो हाउ डू आई अरेंज 300 स्टूडेंट्स? उनको तो 40 वैकेंसी है, तो 60 में से वो क्या छाटेंगे और क्या छोड़ेंगे. तो व्हाट डू आई डू व्हेन वी होल्ड अ कैंपस ड्राइव, इट विल द कॉलेज हैज टू बियर द एक्सपेंस. पूरा एचआर के उनको आने का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना, उनके आने जाने के पैसे देने हैं, उनका खाना अरेंज करना है. तो we do पूल कैंपस. आई इनवाइट द रिलेटेड कॉलेजेस जिनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं, तो जब उनके यहाँ होती है तो वो हमें इनवाइट करते हैं. देन वी हैव जॉब फेयर्स. जॉब फेयर्स क्यों लगाते हैं हम? आई विल क्विकली कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी सर्टिफिकेशन कोर्स हमें करना है. जॉब फेयर्स होता है सर, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वी ऑल नो विद दैट वी डू हैव सम बैकलॉग्स इन आवर कॉलेज. वो बैकलॉग वाले बच्चे को कंपनी लेगी नहीं. दे नीड थ्रू आउट, बुरा कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मिनिमम 60%. सो व्हाट वी डू एमओयू विद द कंपनी, और वो उनको हम एश्योरेंस देते हैं कि 6 महीने में बच्चा अपनी बैकलॉग को क्लियर कर लेगा. इफ ही इज नॉट एबल टू क्लियर हिज बैकलॉग, देन दे कैन थ्रो हिम आउट और व्हाटएवर दे वांट. प्लस जॉब फेयर में यू हैव 40-30 कंपनीज अंडर वन रूफ. तो आपका बच्चे को यू आस्क हिम टू ब्रिंग 15-16 सीवी लेके आएगा, एंड डेफिनेटली ही विल गेट सम प्लेसमेंट. तो एक दिन के अंदर यू कैन गेट अराउंड 50 प्लेसमेंट्स इन वन डे. इन एडिशन टू दैट, बिकॉज यू इनवाइट अराउंड 30 कॉलेजेस इन योर इन दी जॉब फेयर, तो आपकी अच्छी पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत एडवर्टाइजिंग हो जाता है. सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर प्लेसमेंट. एंड देन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, आज के दिन ये बड़ा रिवाज हो गया है, यूपी गवर्नमेंट भी अपना जॉब फेयर लगा रही है. तो स्पेशली दे विल डू इन कॉलेजेस लाइक जो कि नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, यू गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज, राइट. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लेसमेंट. प्लेसमेंट को हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, बच्चों की प्लेसमेंट कैसे इंप्लॉयबल होगी, इसमें पहले बताती हूँ कि ना कुछ पहले ट्रेंड था सबसे पहले कि जस्ट यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन योर कोर फील्ड, कि हाँ जो हमने पढ़ाई में पढ़ा है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में उसमें 90% हो गए, यू गेट प्लेसमेंट. इट वाज अ डेकेड बैक. उसके बाद एमकेट की बात करें, सारे मार्क पेपर्स में आ रहा है, सर्वे हो रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव सॉफ्ट स्किल्स, दे डू नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स. इसका बहुत हो हल्ला हुआ. देन वी रियलाइज कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
आपके आज के दिन हालत हो गई कि 40% you need the core knowledge and 60% is about communication skills only, because you need smart people, those who can handle audience, because we are not dealing with Indian audience or customers, we are dealing with international customer. उसके बाद फिर आपका आ गया, अब अरे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ नाउ दे आर आस्किंग फॉर अपस्किल, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज. दे वांट कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को एआई भी आना चाहिए, एमएल भी आना चाहिए, आईओटी भी आनी चाहिए, एसएपी भी आनी चाहिए. तो दे यू नीड टू अपस्किल, अप लेवल योर स्टूडेंट्स टू compete इन द मार्केट. वो अपने फील्ड पे पैर नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि आज के दिन बायजूस को, इंफोसिस को, टीसीएस को वो बच्चे चाहिए दोज हु कैन डू मल्टीटास्किंग जॉब्स. हाँ, मुझे ये भी आता है. इफ भारती इज गुड इन लिटरेचर, शी कैन मैनेज प्लेसमेंट, शी कैन मैनेज दिस फील्ड ऑल्सो, शी कैन डू दिस ऑल्सो. अगर आप अकेले कहीं नहीं जी मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो और डिजिटल एज में, प्रोग्रामिंग एज में, बीटेक में तो क्योंकि सारे ही प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, तो इट इज डायर नीड ऑफ द आवर to upskill your students, to up level your students. This is where we talk about the importance of certification and value addition courses. प्लस हमें कैरियर काउंसलिंग, जैसे मैंने, सर ने भी एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के दिन आई एम टेलिंग यू, 10th क्लास में, 12th क्लास में माय डॉटर इज इन स्कूल एंड समडे शी विल टेल मी, शी विल, मैम मम्मी आज वो एक सर आए थे, उन्होंने बताया साइकोलॉजी का तो अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्कोप है, ये है. I mean, you feel so good that you don't need to mentor your kids. They already come mentored from school. तो कैरियर काउंसलिंग सेशन, फॉरगेट अबाउट कॉलेजेस, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ, ताकि बच्चों की ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड क्लियर हो सके. नाउ एलुमनाई को हम इग्नोर कर देते हैं. बच्चा चला गया, प्लेस हो गया, वो इंडिया के किस कोने में है, कहाँ पे है, वी लूज टच विद द चाइल्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका हम कनेक्शन रखें, क्योंकि आज के दिन मेरी अटैचमेंट मेरे कॉलेज वाला जब बुलाता है मैं भाग के जाती हूँ. तो जिस स्कूल से हम पढ़े हैं, जिस कॉलेज से हम पढ़े हैं, तो बच्चे का उसके साथ अफेक्शन होता है. तो अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हियर, आई कॉल्ड संदेशा कि संदेशा एक सेशन करना है, आप आ जाओ. जेएनयू की स्टूडेंट है, जेएनयू की मैं स्टूडेंट हूँ. तो एलुमनाई में क्या होता है कि जो बच्चा जिस कंपनी में काम कर रहा है, देयर कुड बी मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द चाइल्ड विल वर्क एज ए ब्रिज, और उनको वो ही विल कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. तो साइबर ग्रुप में आज के दिन हमारे 27 बच्चे जब मैं छोड़ के आई थी काम कर रहे थे, एंड इनिशियली आई प्लेस्ड ओनली 3 स्टूडेंट्स. मयंक एक बच्चा है. You have put a very pertinent point here. Alumni are very, very important in the topmost institutions in the country, whether it is a medical or it is a engineering or law or anything. One of the strongest point in BITS planning is their alumni. Yes. They are spread all over the world, and they give lot of inputs to the parent institute, their alma mater, what we call it. So, and in many of the IITs also, they invite their ex-students every now and then to address to the current batches. Yes. So next is certification and value addition courses. हाँ, सो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स हम वैसे तो फर्स्ट ईयर कोर्सेज में ही सर, सब कोर्सेज में आज के दिन MBA, BBA, in first year itself we do have one communication skills course, but it is again important to hone and kind of polish these skills when they are nearing placement in 3rd and 4th year. So for this should start in 3rd year. तो क्योंकि पहले हम 4th ईयर में प्लेसमेंट करते थे, अब हम 3rd ईयर से शुरू करने लगे हैं. तो 3rd ईयर में वी शुड मेक especially the skills like resume writing, interview skills, debate, group discussion, non-verbal communication, project management. ये कुछ चीजें हैं जो कि we need to again prepare them or remind them or polish their skills in the 3rd and 4th year. So again एक टेस्ट भी होता है आज के दिन. कॉलेज जो भी कंपनी आती है एक रिटन टेस्ट लेती है, एप्टीट्यूड टेस्ट. So this communication skills course of few hours could be 40 hours, 50 hours depending on the need. So that should be introduced in the 3rd year. कैरियर काउंसलिंग सेशन की मैंने शुरू में ही बात की थी कि बच्चे को हायर एजुकेशन जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, स्टार्टअप करना है, ये हमें करना चाहिए. रिसोर्सेस हमें कहाँ से लेने चाहिए? इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के हम लोग CEO को बुला रहे हैं, बिजनेस हेड्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इंस्टीट्यूट एलुमनाई, दे आर रिसोर्सेज फॉर कैरियर काउंसलिंग सेशन. सो हमारे यहाँ एक बच्चा है सर, उसका नाम कुमार अनुराग. ये बच्चा बहुत शाई आया था कॉलेज में, और ये जब से कॉलेज छोड़ के गया, इसको 5 साल हुए हैं,
इस बच्चे का प्रोफाइल है, इसने एप्पल से इंटर्नशिप किया है, डिलॉयट से प्रोजेक्ट किया है, इसको बैंक डिजिटलाइजेशन अवार्ड मिला है, 4-5 उसकी प्लेसमेंट हमारे टाइम में थी, और जब तक इसने बीटेक कंप्लीट किया, ही पब्लिश्ड अ बुक इन द मार्केट, पाइथन माय बेस्टी। अब अगर इस बच्चे को देखें, नाउ ही इज डूइंग एमटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो आप इसको देखें, हायर एजुकेशन में भी इसने एक्सेल कर दिया, प्लेसमेंट में भी एक्सेल कर दिया, यूनिवर्सिटी रिजल्ट में भी इसने एक्सेल कर दिया, और एप्पल डिलॉयट जैसी जगह पे इसने वो किया है, बैंक डिजिटलाइजेशन इंडिया में इसको अवार्ड मिला है, पब्लिशिंग में इसने पाइथन माय बेस्टी बुक निकाल दी। तो इससे बेटर एलुमनाई हमें कहाँ मिलेगा? सो दीज एलुमनाई आर द रिसोर्सेज कि कैसे हाउ डिड दे ग्रो। देन देयर वाज अनदर किड, शुभम सिंह ढांडा। आई आस्क ऑल दी पार्टिसिपेंट्स टू गूगल हिज नेम। ये बच्चा हमारे कॉलेज का इतना शरारती बच्चा था कि आप ये पहुंचे कि महीने में, हर हफ्ते में इसकी एक कंप्लेंट डायरेक्टर को जाती थी, सस्पेंड हो गए, फिर उसके पेरेंट्स आ गए। हरियाणा का बच्चा था, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, तो थोड़ा वो टाइप उसमें बदमाशी है। लेकिन कोविड ने क्या किया, अब आपका जो दिमाग जो पहले उसका मिस्चीवियस चीजों में था कॉलेज के टाइम में, अब कॉलेज में उसको दोस्त नहीं मिले, ये बदमाशियां करने के लिए कोविड में अकेला रह गया। तो कोविड में सर उसने अपना माइंड चैनलाइज कर दिया स्टार्टअप में, और नाउ इफ यू गूगल हिज नेम इन यूके, इन यूएस एंड सो मेनी कंट्रीज, ही हैज हिज ऑनलाइन स्टार्टअप and he's making crores. Shubham Singh Dhanda. So you see one child who is so mischievous, getting repulsion every third day from the college, punishments from the college, और एक दिन उसने अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज किया। Now he is, you see his name in newspapers and everywhere. And मैम जो आपने कहा ना, मोस्टली मैंने देखा, most of the times, not always, most of the time the most notorious boys or girls, they have in them energy. Role of the teacher, mentor, counselor and guidance is to channelize, जो आपने word use करा, that is the most important. वो turning point कहाँ पे आ जाना है, कौन सी चीज को टच कर देना. Sometimes just a small hug, just a placing your hand on the shoulder and have a small conversation, informal or formal conversation with the boy or a girl of this kind can twist. हमारे बैच में मैम 1978-82 बैच में, when I was doing my degree in Thapar, 82 की बात है, when we passed out, we met after 25 years on Silver Jubilee alumni meet, and then somebody told me that so and so person, Pramod, you didn't join army. I said no, I couldn't join because of my social restrictions in the home. He said, let me introduce to the Bhupinder. We used to call him Bhupi. Bhupinder Singh, he is now brigadier in the army. I said, Bhupi brigadier ban gaya. I mean, he was such a notorious boy. I mean, हम लोग 25 years में एक दूसरे से मिल रहे थे, and we were surprised कि how some boy who was very shy or who was very notorious, who was very, they are touching the places. And my own roommate, I just the day for yesterday, I think I gave example to the house here. He was always coming with the very absurd ideas, and he's now drawing the highest package, 1 crore rupees a month. We do not, that is the role of our teacher and mentor, ma'am. जी जी, कैरियर काउंसलिंग, ये तो मतलब मैं आपको ये बताती हूँ सर, आई एम श्योर ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, दोज हु आर अटेंडिंग, मस्ट, पक्का उनके पास कोई ना कोई ऐसा केस सैंपल जरूर होगा विद दिस एग्जांपल, who is doing a marvelous job with a very basic schooling or background or whatever the circumstances could be. तो ये है, वहां पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके उस पॉइंट को कहाँ ट्विस्ट करना है। और कैरियर काउंसलिंग के लिए मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। हमें एक मंथ में एक कैरियर काउंसलिंग सेशन को करवाना ही करवाना है। मेक इट योर ड्यूटी एज अ टीचर। वो काउंसलिंग सेशन किस पे हो सकते हैं कि उसको अगर अब्रॉड जाना है तो कैसे जाया जाए, मतलब कैसे तैयारी की जाए, हाउ टू गो फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। अब्रॉड जा रहा है तो उसको फंडिंग बैंक की, हमारे बहुत सारे बच्चे पुअर हैं, बाहर तो जाना है, मैडम पैसे कहाँ से ले, बैंक से लो। अब बैंक में एक और चीज आ गई है सर, मोदी जी ने ये कहा कि किसी बच्चे की एजुकेशन पैसे की वजह से नहीं रुकेगी। तो वो बच्चा क्या करता है कि वो कॉम्पिटिटिव, वो रिटर्न एग्जाम क्लियर करके उसके रिजल्ट को मोदी जी की कोई वेबसाइट है जो कि उसके लिए है, लोन के लिए, उसके ऊपर उसको अपलोड करना है बस। वो मिनिस्ट्री के पास प्रूफ चला गया, उससे वो एक प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाएगा ही जाएगा। बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकता, चाहे उसका फादर फार्मर है या रिक्शा वाला है। बैंक will provide him the loan. So we do have strong now government policies
to help these vulnerable students. तो कैसे फंडिंग की जाए, बाहर जा रहे हैं तो आइल्स एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, स्टार्टअप करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट एग्जाम जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये जो हमारा ये जो बच्चे ये जो करते हैं सर बाहर जाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है CMAT और ये सब चीजें हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस GMAT हैं, इनकी तैयारी कैसे की जाए, और अदर कोर्सेज और आप जैसे अलग से इंडिपेंडेंटली घर पे कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हम आपको, तो दीज कोर्सेज एवरी मंथ यू मस्ट हैव वन काउंसलिंग सेशन. सो ये कुछ लिस्ट हैं जो हमारे कॉलेज में करंटली क्योंकि मैं छोड़ के आई थी तो बिकॉज आई वाज अ प्लेसमेंट हेड, तो ये हमारे पास ये ऑन दी वेबसाइट डेटा है हमारे, बिकॉज वी हैव डन NAC and MBA. So this is what few of things that I have taken out कि इन लोगों ने इन पे ये करवाने हैं कि गेट को कैसे तैयार करना है, इसको कैसे तैयार करना है, तो ये they should hold these sessions. एलुमनाई इंट्रैक्शन की मैंने बात किया था, तो ये बच्चा इधर साइड में है कुमार अनुराग, एलुमनाई स्टिल कंफ्यूज्ड. So he is Kumar Anurag. So these are our alumni. They were of great help. अब आ जाता है आपका कॉर्पोरेट कनेक्ट प्रोग्राम. दिस आई लर्न फ्रॉम IIT दिल्ली. When I joined this college, यहाँ पे था कि there was one TPO. He will bring a company. बच्चे आपस में पूछेंगे क्या पैकेज है, उसमें से बच्चे भरेंगे 50 और when the company will come, there will be only 10 students. और IIT में क्या है, we have a student empowered placement cell. The students suggest the name of companies and the student they visit the company. So I started this in my college also. तो जो भी हमें कि हाँ अब ये Qualcomm कंपनी है, this is for electronic students, this has more than 100 employees capacity and I visited the company with the students. वो पूरा देख के आते हैं, पूरा दिन स्पेंड करके वहां पे, they will see the workstations, will talk to the HR, जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस हैं उनसे बात करके आते हैं. साइबर ग्रुप में मैंने बताया हमारे ऑलरेडी 26 के करीब बच्चे हैं. They will see कि what are the different projects working in that particular organization. मैंने ये नीरज जी, इनके नीरज श्रीधर जी हैं, इनसे जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया, and he's a person who had been to around more than 10 countries. तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें 1 घंटा दिया. और यहाँ पे ये एक बच्चा है व्हाइट शर्ट में, इसका नाम करण है. करण को मैं हमेशा लेके जाती हूँ बिकॉज यू मस्ट हैव 10 वेरी गुड कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव. आप जो अपने साथ बच्चे लेके जाएं वो बहुत अच्छे बच्चे हों विद वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो जैसे ही इन्होंने नीरज जी ने बात करना शुरू किया, करण ने कहा सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका एक्सेंट थोड़ी देर पहले तो यूके का था, अब आप यहाँ का बोल रहे हो. ही वॉज लाइक सरप्राइज कि तुम्हें कैसे पता लगा. मतलब द किड्स आर सो शार्प. इफ आई एम टीचिंग इन माई क्लास, Karan will stand up, ma'am, can I add to it? Can I modify your statement? So you have such kids in the class and they are real power. They represent your college. So ये जब बच्चे हम लेके जाते हैं तो ये आके then they convince the other kids. And मेरी जो placement team है उसमें सारे 40 के करीब बच्चे हैं. I do not take help of faculty members. बच्चों से ही मैं पूरा पहले दिन डेकोरेशन कराना है, कमरे तैयार कराने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और फोटोग्राफी एक बच्चा करेगा, 4 बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, 4 बच्चे एंकरिंग करेंगे. इन्वॉल्व दी स्टूडेंट्स फ्रॉम 3rd year onwards और 2nd year onwards. Make them part of your placement team. Otherwise, अगर आप अकेले करेंगे, it will not help you. This is the greatest gap. I had been to various colleges as invigilator, or when I talk to the students, are you part of the placement cell? They say no. So that is a very important component. अब हम आ जाते हैं सर्टिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन कोर्सेज पे कि हम क्या जरूरत है इसकी, हमें कब से शुरू करना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज, हाउ टू अरेंज रिसोर्सेज फॉर दैट, हाउ शुड वी डिजाइन अ सर्टिफिकेशन कोर्स एंड अरेंज फंडिंग फॉर दैट. तो पहले हम ये पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, हमने सिर्फ सर पहले बीटेक के लिए शुरू किया था, लेकिन हमारे जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हुए सर्टिफिकेशन और वैल्यू एडिशन कोर्सेज से, देन वी स्टार्टेड फॉर अदर ब्रांचेस आल्सो. ये इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको मेल की थी कि हमारे कॉलेज में बीटेक में, एमबीए में, बीसीए में क्या क्या हमने सर्टिफिकेशन कोर्सेज शुरू किए हैं, तो हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था. सो सर्टिफिकेशन कोर्स की जरूरत क्या है? नंबर 1, to prepare the students from 1st year onwards, to make them more resourceful and employable and upskilled from 1st year itself. हम 3rd year में तैयार नहीं कर रहे बच्चे को, हम उसको 1st year से ही तैयार करना शुरू कर रहे हैं.
तो इसकी पर्पस ये है कि फर्स्ट ईयर से हम हर एक सेमेस्टर में एक सर्टिफिकेशन कोर्स देंगे, एंड बाय द टाइम द स्टूडेंट विल कंप्लीट और कम टू द फोर्थ ईयर, ही मस्ट हैव डन 6 or 7 सर्टिफिकेशन कोर्सेज, एंड दैट टू फ्रॉम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा हमें जरूरत है चेंजिंग मार्केट जॉब प्रोफाइल। जो मैंने कहा कि आज के दिन प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, SAP पे काम कर रहे हैं। तो मल्टी फैसेटेड जॉब्स हैं, हमें मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है। एक चीज में एक्सेल कर देने से हम मार्केट में ज्यादा दिन तक खड़े नहीं हो पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट वर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, मल्टी फैसेटेड जॉब्स हो गई हैं, एंड टू कम्पीट दी कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, ये एनवायरमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को रिसोर्सफुल, पावरफुल बनाएं, तभी वो जाकर के दे कैन एक होते ना एज, एक एज उनको मिले अलग से, दे आर अहेड ऑफ अदर्स। अब सर्टिफिकेशन कोर्स कब से शुरू करें, तो ये मैंने बताया कि हम हमारे कॉलेज में वी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। मैंने यहाँ एग्रीकल्चर में भी आके बहुत लड़ाइयां करके, वेयर द पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड, आई मेड इट अ पॉइंट, बिकॉज इफ माई कॉलेज इज गोइंग टू गिव मी 1 lakh रुपी फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्स, तो मैंने लगा कि क्यों ना इसका और अच्छा नाम किया जाए। आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम JNU एंड वी हैव दिस कोलैबोरेटिव event. She is here. Yesterday, Professor Vaishno Narang was here. She is a professor from JNU. And कल प्रोफेसर सौगित सर होंगे, परसों प्रदीप सर, प्रमोद सर होंगे, आप सर आपका सेशन 8th को, प्रदीप कुमार दास सर 10th को होंगे। सो ये क्या है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट से JNU के नाम से आपकी कॉलेज का नाम भी बढ़ रहा है, इमेज बढ़ रही है यूनिवर्सिटी की, और फर्स्ट ईयर से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज मेरे बच्चों के पास वी आर टेकिंग ओनली 300 रुपीज, और उसके ऊपर JNU का लोगो लगा है और हमारी कॉलेज का लोगो लगा है। तो दे आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर डूइंग इट फ्रॉम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम लोग इसको एक सेमेस्टर में टारगेट करें एक सर्टिफिकेशन कोर्स को करने की। और हमें करना कैसे है, तो यूं नहीं है कि हम शुरू से ही उसको बहुत पावरफुल कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करें। वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल टॉपिक्स अभी आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। और इसको सिलेक्ट कैसे करें, तो जब बच्चा एडमिशन लेता है कॉलेज में, तो वी हैव द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। So during the orientation program, I make it a point that I have 1 hour session that is introduction to the certification and value addition courses. हम वहां उनसे बात करते हैं at the time of orientation, ताकि पेरेंट्स भी सुनते हैं। Then we start from, यहाँ रख दीजिए भैया, then we start from basic level to advanced level. पहले बच्चे को बेसिक लेवल से शुरू कीजिए फर्स्ट ईयर में, देन सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर यू मूव ऑन टू द एडवांस लेवल। और हमारा बच्चा जब फाइनल ईयर में पहुंचता है, then it is a fast track level where he is able to handle big projects. अब हम फर्स्ट ईयर में क्या कर सकते हैं, आज हमारे पास टाइम कम था, नहीं तो I would give you a task, will divide you in groups and you will create 1 certification course of 16 sessions. आप उसके सेशन कर सकते हैं 14 sessions, 15 sessions, but in our college it is 16 classes. तो हम फर्स्ट ईयर में कोर्सेज कौन से लें, we can have courses like life skills, communication skills हमने जैसे शुरू कर दिया, डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, हमारे बच्चे खुद न्यूज़लेटर डिजाइन करते हैं। तो आज के दिन इट इज अ मस्ट, क्योंकि बहुत बच्चों को जो प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं बहुत डिजाइनिंग की जरूरत होती है। तो हम कोई अगर अपने यहाँ डिजाइनिंग उनको करवा सके, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, बेसिक IT स्किल्स बच्चे को आनी चाहिए। नॉट सिंपली दैट दे हैव लर्न फ्रॉम स्कूल वर्ड कैसे चलाना एक्सेल, इट शुड बी इन अ बेटर वे कि कैसे डेटा को मैनेजमेंट करना, डेटा मैनेज करना है, ये चीजें IT स्किल्स में। Financial education for young citizens, we also do that in our NSS program. Project management and reporting, project is nowadays a necessity of the day. तो उनको प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, we have some very good teachers, those who are handling very big projects, so they help them, they can have the sessions on project management. और LinkedIn प्रोफाइल, अपनी सोशल नेटवर्किंग को कैसे स्ट्रेंथन करना है, इसकी जरूरत क्या है और किस लेवल पे उनको करनी चाहिए। तो we can talk about social networking styles with reference to LinkedIn. And then आज के दिन जो कॉपी पेस्ट का रिवाज बना हुआ है, स्पेशली ChatGPT एंड अदर स्टफ, हम कंप्यूटर से इधर से उठाया उधर से पेस्ट किया, तो वो तो कंप्यूटर में ही रह गया ना। वी डिड नॉट क्रिएट आउट ऑफ आवर माइंड, हमने अपना दिमाग तो लगाया नहीं, तो कंप्यूटर से इधर से उठा के वो कंप्यूटर में ही शाम को रख के हम सो जाते हैं, द किड्स। सो दे शुड नो कि हाँ पहले आप खुद लिखो, और उसकी अब आज के दिन वी हैव रिफ्रेसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ tools to help them out, but we have to take them out of this biggest clutch कह रहे हैं जिसमें वो जकड़ते जा रहे हैं आज के दिन. So we need to make them understand how to handle it.
and why it is necessary. So उसके बाद ये आ जाते हैं, हम डिसिप्लिन वाइज सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम मैनेजमेंट में भी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, तो हम उन बच्चों को इकट्ठा बैठा सकते हैं. सो इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो आज के दिन है वो, एज आई टोल्ड यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, एसएपी, वेब डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप ए वेबसाइट, अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हैं बच्चे, ये these are few very common and very relevant courses. Then there are a few courses common for engineering and management like innovation, incubation and enterprise startup, तो हर किसी को करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट इज इट? So this, the students of all streams, they require. Then you have digital marketing. Marketing तो पहले हम बाजार में बेचना है, तो आज के दिन प्लेटफॉर्म बहुत फास्ट चल रहा है. डिजिटल मार्केटिंग, that is the need of the hour and which is common for all the streams. मैनेजमेंट में कुछ Ma'am, these slides were really very, very interesting and important for all of us. You are throwing them the ideas from first year to final year, what kind of value addition certificate courses can be designed. Depending on your some topics will be common to many branches, but some will be what is the requirement of the industry. Depending on that, you can include that, especially in the third year and final year when you are designing the value addition courses. And these courses must be given. Otherwise, what is happening, ma'am, is students land up spending lakhs of rupees in the market में दुकानें खुली हुई हैं. And there are already shops who are giving you these certificates, charging a lot of money, and without giving, they don't have that kind of qualified faculty with them even, but then they are giving it to the students. When we have the expertise and it is our responsibility to play the student, we should design this thing. Please, my dear friends, all the participants, listen to it very carefully, get the ideas, and then you can invite Dr. Bharti Shokeen in your college to have a workshop for designing the value addition courses also. Please carry on, ma'am. थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग टू इट. अब मैनेजमेंट में हम लोग आज के दिन एक बहुत बीबीए कोर्स चल पड़ा है. पहले वी हैड एमबीए, बट आज के दिन देयर इज अ ग्रेट hundreds, thousands of students. When we had this entrance exam of Guru Gobind Singh Indraprasth University, suddenly I saw a boom in BBA course. So इसमें जो है BBA and MBA both students, they can do this Tally ERP, जो ERP आज के दिन हमारा अटेंडेंस वाला है, डेटा कलेक्शन वाला है, प्लेसमेंट की भी ERP आ गई, अटेंडेंस की भी ERP आ गई. सो वेयर वी गेट पूरा एक इकट्ठा कलेक्टिव डेटा हमारे पास आ जाता है, उसको कैसे डेवलप करें. स्टार्टअप्स जैसे हो गया मैनेजमेंट के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल मार्केट रिसर्च, अभी आई एम एडिंग यू हियर. यहाँ पे इवन इन जयपुर वी हैव CCS नियाम, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. तो अब ये बच्चा मेरा MBA यहाँ की, इट्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और यहाँ की MBA जो है वो 1 साल की. सीताराम जी थोड़ा पानी दे देंगे पीने का. हाँ. तो यहाँ पे सर इसकी जो MBA है वो 15 लाख 12 लाख रुपए 1 साल की है, और वो लोग जो है वो स्टार्टअप भी फंडिंग भी करते हैं. तो नाउ अभी ये कोर्स हमारा खत्म होने के बाद इन कोलैबोरेशन विद नियाम, so then the topic will be preparing students for placement, higher education and entrepreneurship. वो हमारे बच्चे, कोलैबोरेशन हमारा ऐसा हुआ है कि नियाम जाएंगे हर रोज 40 बच्चे, बेस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एंड वो वहां पे हायर एजुकेशन के MBA के लिए कैसे तैयारी करना है. स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप फंडिंग की सारी वो बात करेंगे, पूरा वो उनको कंपनी विजिट्स पे लेके जाएंगे MBA की. एंड देयर फैकल्टी हाईली रिप्यूटेड, एमिनेंट, हाईली एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि वो यहाँ अपनी खुद की क्लास है तो दे विल बी वेरी बिजी. तो हम अपने बच्चों को ही वहां लेके जा रहे हैं. And this is a central government institute. They are not charging anything. So every day 40 students from my college will go there. And that too in first year, I tell you, after this certification course, we have another program with NIAM in collaboration with NIAM. So वो उनका related है employability से. So I am starting preparing for their employability from first year itself. So ये होगा मेरा placement से related. So this is how it can help these students. Then because now I am in agriculture,
So now, because I am in agriculture field, so agriculture के certification courses are different. This is post harvest technology, nursery and rooftop gardening. तो आज के दिन metropolis areas में हमारे पास जमीन नहीं है, पर छत पे हम rooftop gardening बहुत जबरदस्त कर सकते हैं. Lab management, तो लैब मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. हर एक कुछ चीजें कॉमन होती हैं कि बच्चों को लैब कैसे मैनेज करनी चाहिए. इंटरनेशनल ट्रेडिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग. आज के दिन वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड, द पॉइजनस फूड एंड दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. तो एक ऑर्गेनिक, हर चीज हमें ऑर्गेनिक चाहिए. तो दिस इज इन बूम. लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, देन डेयरिंग, and then seed processing, grading, and number of courses in agriculture. The little courses अभी जो बूम में है वो मैं आगे बात करूंगी. सो हमें रिसोर्सेस क्या करने चाहिए. जैसे अभी प्रमोद सर ने कहा कि हमें, हमारे जो बच्चे हैं दे फॉल इन द क्लचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. दी मार्केट्स, जो दुकानें वेंडर्स की बनी हुई है, बच्चों से 50-50 हजार रुपए लेके वो एक कोर्स करते हैं और उस प्राइवेट सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है. सो दिस इज द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी टू अरेंज दीज कोर्सेज. तो हम कैसे करते हैं कि रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंद्रशाला आपने नाम सुना होगा, सेटपा, सिस्को, आईसीटी एकेडमी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो टॉक है मेरी अभी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, निपम है, ये NISM है, NIAM, इन ऑर्गेनाइजेशन से जैसे हम अभी नियाम से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो डू कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स. Then premier technical and management institutes like IIM Bangalore, उनकी E-cell है. हम IIT दिल्ली की virtual E-labs कर रहे हैं. इनसे हम MOUs and collaboration कर सकते हैं. Then we have MOUs under corporate social responsibility. तो MOUs corporate social responsibility पे जैसे हमने Rubicon से कराया, बार्कले से करवाया, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. तो ये CSR के अंडर हमें कॉम स्किल से ये कोर्सेस हमें कराती हैं. तो फ्रॉम these are some of the very famous common resources जहां से हम इन कोर्सेस को करवा सकते हैं. So these are a few MOUs that we did in our college and this is going to help us. ये MOUs की थोड़ा, क्योंकि these are all on our website in the NBA NAC, so these are available on the website. अब ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज को हम डिजाइन कैसे करें, जैसे मैंने एग्जांपल किया कि हमने 16 सेशन का डिजाइन किया है. अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीधी बात करने लग जाएं, पर वो बच्चा हमारा कंप्यूटर साइंस का है, तो उसको पहले हमें बताना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. तो वी स्टार्ट विद द बेसिक लेवल इन फर्स्ट सेमेस्टर and advanced level in the second semester. So in first semester, for example, the first session would be what is artificial intelligence and machine learning, difference from normal programming, real life applications using AI ML, practical using AI ML apps like Google. Ma'am, there is one question coming in my mind. I think this must be in the minds of many other participants also. These value addition courses are other than the regular curriculum. Yes, sir. These are other than the regular. Students will be coming to the institutions or the colleges in the evening or in the morning or in the slots where you have student center activities. These are the other than that. Yes, sir. So this we must understand. And somewhere we have a feeling that I am in a government job, so I don't have to do this thing. I don't have to worry about all these things. This mindset in the teachers have to go. This mindset in the teachers have to go in coming times. No longer, maybe up to few years, maybe, or maybe immediately, government is withdrawing the grants. In our institute also, government is withdrawing the grants, and they're asking us to have generate your own IRG, internal resource generation, because there is no funds with the government. Government do not have the funds enough. This is besides the issue to survive, for our own survival also, and for our own personal social responsibility or the institutional social responsibilities concepts are coming up, and they are coming up. And I mean, this also gives you a lot of job satisfaction also. As I mentioned in the beginning, कि हमने सारी जिंदगी एक लड़के की रोटियां लगा दी. That kind of with that enthusiasm, वो जज्बा, वो एक inspiration से, enthusiasm से हमें ये इसको आगे carry forward करना है. And then mentoring is very important for everything. I mean, for all these things, you have to have that inside you already. Okay, ma'am, please. Thank you so much, sir. I missed that point. Thank you for reminding me कि ये जो courses है, they are not part of our regular course curriculum.
इसके लिए हमें एफर्ट अलग से करना पड़ेगा। हम लोग ये एफर्ट सैटरडे संडे को वी हैव द एक्स्ट्रा क्लासेस। अश्विनी सर फ्रॉम बैंगलोर, ही इज द CEO ऑफ बुजियन एंड ही इज graduate from NIT Kurukshetra. So sir has been to various companies. So sir ये AIML की classes लेते हैं 10 से 11 एक सेशन, फिर there will be half an hour break, then there will be second session and we are taking 30 students only in one group. तो वो पहले हम उनको लिख देते हैं कि भी 4 कोर्सेज ओपन कर लेते हैं, फिर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है, जिसका हमारे पास 30 आ गया, वी स्टार्ट दैट ग्रुप. So this is extra effort on the part of college and I tell you because I am from literature field, ये अश्विनी सर ने डिजाइन किया है, the one that I am reading it out, sir has designed this, our kids are doing it in the college. So ये जो है हमें इनका भी देखना है, जो जनरल कोर्सेज का भी. So this we need to do it. Number one, we should be sure about number of hours, उसको कोर्स करने के लिए कितने चाहिए. When the students will be free, एक जैसे हमारे यहाँ GL Bajaj है, they charge 1 lakh rupee at the time of admission for the certification courses. और बल क्योंकि because if we charge it, the student will make a complaint to university कि ये हमसे एक्स्ट्रा फंड ले रहे हैं. तो ये हमें कुछ ऐसा करना है कि चाहे हम इसको फंड कहाँ से अरेंज करें. एक तो हमें यूनिवर्सिटी फंड दे रही है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, वी नीड टू फाइंड इट आउट. सेकंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड, हमारे जैसे JNU से कर लिया, जैसे मैंने JNU से किया है, तो ये लोग फ्री कर रहे हैं, मतलब क्योंकि इट इज अ कोलैबोरेशन. सो JNU इज कि पहले, अब यहाँ ये मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल बात है पर ये प्लेटफॉर्म है तो मैं बता देती हूँ. व्हाई वुड JNU डू कोलैबोरेशन विद SKNAU? इसको जयपुर से बाहर इस यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता. JNU इज नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. सो जब मैंने उनसे बात की कोलैबोरेशन की, दे सेड भारती आपकी NIRF रैंकिंग क्या है, आपका NAC क्या है, आपका NBA क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. तो दे सेड हाउ वुड यू थिंक दैट माय वाइस चांसलर विल गिव परमिशन फॉर कोलैबोरेशन. देन आई वाज टॉकिंग टू प्रोफेसर प्रदीप कुमार दास. तो मैंने कहा सर आपके लिए इतना काफी नहीं है कि आपकी स्टूडेंट कर रही है. तो ऑल दैट ही सेड that okay, I know the vice chancellor and this आप भेजो, I will see to it, and this is all done by I will see to it, I tell you that. तो ये अब ये कैसे हुआ एफर्ट? इट इज नॉट एफर्ट डन बाय यूनिवर्सिटी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इट इज योर कनेक्शन. सो आई थॉट इफ माय कनेक्शन कैन हेल्प माय स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी, एंड द कॉलेज डिड नॉट आस्क मी टू डू इट. I thought it as my responsibility other than teaching कि इन बच्चों के लिए मुझे, क्योंकि मैं प्लेसमेंट से आई हूँ, why not to do something for these kids. सो ये 3 कोर्सेज हैं सर, ये मैंने डिजाइन किए हैं. तो इनके एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है. दिस दे कैन रीड ऑफ देयर ओन बिकॉज दे आर डिजाइन्ड बाय सर, एंड मेरा एक्सपर्टीज इसमें कम है बिकॉज आई वाज कोऑर्डिनेटिंग दैट, बट स्टिल आई डिजाइन्ड इट. अब जो बहुत बड़ी चीज है जो आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जो सर्टिफिकेशन कोर्स करने से जिस दिन मुझे शॉक लगा, फॉरगेट अबाउट प्लेसमेंट, सरकारी नौकरियों में आपके बच्चों को इंटर्नशिप मिल गई. In 3rd year, imagine your kids are going to DRDO, IBM, Tech Mahindra, Maruti Suzuki. ये हमारे जिस बच्चे के नाम के साथ आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेज, ये मैंने मेंशन किया कौन सा हमारा बैच है और कितने से कितने तक. अगर एक बच्चा DRDO से इंटर्नशिप करके आ रहा है, IBM से इंटर्नशिप करके आ रहा है, तो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी? वी कैन थिंक अबाउट इट. सो दिस इज द इंटर्नशिप डेटा ऑफ माई कॉलेज. So because पहले मैं शेयर नहीं कर सकती थी, now this is on my website because MBA we have done. So all this data is available on the website with the names and everything. NIC में कर रहा है बच्चा, NTPC में कर रहा है, भारत इंटर्न, सेंटर फॉर रेलवे स्टेशन, बोल्ट IoT, NIC दिल्ली, इतनी बड़ी बड़ी जगह. The maximum contribution goes to the value addition and certification courses that my kids had done, or every kid had around 7 to 8 certificates. So it strengthened, forget about my placement, it strengthened my internship to a great extent. So these are some real time data that I'm sharing here. अब हमारा जो ये स्किल ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसका हेल्प कहाँ पे पड़ा? एम्प्लॉयबिलिटी, इंटर्नशिप हमारा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, प्लस द स्टूडेंट्स कैन गो फॉर स्टार्टअप्स लाइक एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्म्स एंड ऑल दैट दे कैन डू. और इनसे क्या है, दिस इज कॉल्ड स्किल्स विद सस्टेनेबिलिटी. ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगी कि कुछ हमारी कोर्सेज ऐसे हैं जो which would affect the sustainability, keeping in mind the environmental concern. कुछ कोर्सेज बच्चों को अगर हम ऐसे कराएं कि जो रीजनेबल भी हैं और वो उनके सस्टेनेबिलिटी को एट द ग्लोबल लेवल
they are very the strengthening the environment, helping the environment to achieve sustainability. कुछ courses ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर में हम लोग करवा रहे हैं. देन लाइफ स्किल्स, ये कोर्सेज सिर्फ ये नहीं कि नौकरी में हेल्प करेंगे सस्टेनेबिलिटी में, इट इज अ लाइफ स्किल. उनको आज मैं कर रही हूँ, मेरी जनरेशन है, और वो जनरेशन करेगी तो उससे आगे वाली जनरेशन करेगी. इमेजिन इफ वी कैन गो फॉर सच वैल्यू एडिशन कोर्सेज. यहाँ पे जैसे एक वैल्यू एडिशन कोर्स हो जाता है आपका रूफटॉप गार्डनिंग. इसमें आपको कोई बीटेक का डिग्री भी नहीं है. वंस द किड विल लर्न इट, अपने घर में दादा दादी चाचा चाची, घर पे भी इट इज अ जॉइंट फैमिली, इवन द मदर द फादर, अब मैंने घर की छत पे कर लिया, ये स्किल मैंने सीख लिया है. आपके टमाटर गाजर गोभी तो छत पे ही हो जाएंगे. हाँ, हमारे पास स्पेस नहीं है, इट इज गोइंग टू हेल्प बिकॉज नाउ आई एम इन एग्रीकल्चर, आई एम लर्निंग दैट. दिस सेकेंड इज अ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. ये क्या है कि राजस्थान के कुछ एरियाज में क्लाइमेट बहुत हार्श है, प्लस इन स्पेस जैसे जॉबनेर में, जब यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, वहां पे -4 -5 पे टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में. इट इज हॉरिबल देयर. सिमिलरली देयर इन राजस्थान, इन दिस एरिया देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो यहाँ पे किसानों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वो कर रहे हैं. अब आप ये देख के पीछे लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, ये तो करोड़ है, ये किसान कहाँ से लाएंगे. आई एम टेलिंग यू 100% फंडिंग बाय द गवर्नमेंट. ये बसी झाझड़ा गांव है, पूरे गांव में जब मैंने किसानों के घर देखे, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई सर. दे आर रिचेस्ट इन द कंट्री. उन्होंने अपने सन रूम बनवाए हुए हैं, हर कमरे में एसी है. आई वाज लाइक, ये फार्मर्स है, ये तो हमारे यहाँ रिच कैटेगरी के लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है इस गांव में, जो यहाँ के किसानों के पास 5-5 हजार के बंगले. जब हम लोग इस गांव को देखने के लिए गए, पूरा विलेज इज अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बिकॉज गवर्नमेंट हैज डन द एंटायर फंडिंग. कि हम उनको, और इस फंडिंग में वो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर एग्रीकल्चर फ्रॉम हार्श क्लाइमेट एफर्ट्स, प्लस जो वाटर स्कार्सिटी है, दे आर एबल टू हैंडल दैट. अब ये तो थोड़ा अलग एरिया है बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद आवर एरिया. लेकिन आज के दिन अगर हम देख रहे हैं, प्लास्टिक पूरा बैन हो गया है, एंड वी आर डूइंग नाउ इट इज 90% ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग में ये जो बॉक्स देखिए मैंने बनाया हुआ है, अभी अगर हम ज्वेलरी खरीदेंगे तो जो मेरे घर ज्वेलरी की डिलीवरी आई है, उसके अंदर बड़े, उनमें खुशबू आती है, पता नहीं वो क्या चीज डालते हैं. ये जो अंदर ये बना हुआ है जो प्रोटेक्ट करने के लिए कि चीज टूटे नहीं, उसमें वो लोग कुछ ऐसे पत्ते डाल देते हैं, रोज के पत्ते, सूखे हुए उसके पत्ते, एंड यू open your jewelry and it is like, oh my god, इतना conducive environment, you feel so good कि परफ्यूम का डब्बा खोल दिया, and it is all about the wonderful packing that they have done. This is a special kind of petals. I like to keep those boxes in my drawing room for pretty long time. वो काफी देर तक खुशबू छोड़ते हैं. It is not जैसे आपकी अगरबत्ती या आपका स्प्रे होता है नॉर्मल, उससे कहीं अच्छी, बहुत ही स्मूथ, I mean not very harsh fragrance, and for months together it will keep on sending that fragrance. Yes sir. बहुत ही जबरदस्त काम है ये. मेरे लिए तो सर ये आजकल एक पैशन हो गया. Whenever I get some online shopping, I will see इसमें किस तरीके की पैकिंग है. इसमें And you are shopping now not for jewelry but for this fragrance packing. So this course सर एकदम से इतना बूम में आ गया है ये पैकिंग वाला कोर्स, एंड इसकी जॉब्स की मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी रिक्वायरमेंट है, एंड इट इज नॉट दैट यू डू इट कि थक जाते हो, सैलरी कम है, क्योंकि इसका तो आपको मतलब दे नीड क्रिएटिव आइडियाज हाउ टू डू पैकिंग, मेकिंग यूज ऑफ रिसाइकलिंग स्टफ, क्योंकि इसमें रिसाइकिल वाला सारा चीज चल रहा है, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको टूटे ना, और कितना क्रिएटिव आपकी पैकिंग हो सकती है ताकि वो कस्टमर उससे इंप्रेस हो बार बार. मेकिंग यूज ऑफ नॉन वर्बल, जैसे मैंने बताया कि नॉन वर्बल में एक खुशबू वाला होता है सर, क्या है, हैप्टिक तो टच होता है, आई फॉरगॉट दैट नेम, फॉर द व्हेन वी गो टू मॉल्स, तो और कोई मीटिंग कॉलेज में करते हैं तो उसमें रूम फ्रेशनर डाल देते हैं. तो दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया दे आर इम्प्लीमेंटिंग, मेकिंग यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल इन पैकिंग. एक और चीज सर आजकल शुरू हो गई है जिस दे कॉल इट फूड प्रोसेसिंग. इसमें जैसे आंवला है, इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव और खूब थोक में हम लोग पैदा कर रहे हैं. वहां पे हमने 4-5 अपने प्लांट्स लगा लिए प्रोसेसिंग के, कि इसका हमें जूस भी निकालना है, मुरब्बा भी बनाना है, आंवले का पाउडर भी करना है, इसकी आंवले की जो है आगे हमें तेल भी बनाना है. तो ये क्या होगा कि इफ वी आर प्रोड्यूसर ऑफ दिस पर्टिकुलर जो है हम आंवला का बना रहे हैं, तो ये वहां पे इस सारे सेटअप को एट ए वेरी मार्जिनल रेट, टेकिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, अरेंजिंग रिसोर्सेज,
और इतना ज्यादा अचार, मुरब्बा, यू सी कैंडी, यू सी ऑयल, यू सी पाउडर, तो ये है, दीज आर स्किल्स कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो बच्चे को ये चीजें सिखाएं कि हाँ ये जो चीज है खूब तेरे पास थोक में पैदा हो गई, उसमें कोई क्लाइमेट के बहुत तगड़े इम्पैक्ट नहीं है, बहुत हार्वेस्ट इसका क्वांटिटी जबरदस्त होने वाली है, यू हैव टू अरेंज दीज रिसोर्सेज, मार्केट में हर जाति तुम्हारा बिक जाना है. सो दीज काइंड्स ऑफ स्किल्स, दिस इज कॉल्ड लाइफ लॉन्ग स्किल्स which we can train our students, because why I talked about it now, I told you as I am in agriculture, so here these are different sources, courses where we are doing. So sir, ये था जो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर पाई अबाउट वैल्यू एडिशन कोर्सेज. जी, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी एनलाइटनिंग. आई मस्ट शेयर दैट आमले की आपने बात करी. Every year we get a box of a snack, which mouth freshener made by my daughter's in-laws at home. They use chukundur. Chukundur को English में कहते हैं, I do not know, but chukundur is like gajar, dark red. Beetroot, sir. Beetroot, yes. Yes, beetroot and आंवला की mouth freshener वो अपने घर में बनाते हैं, and she like to sell it in the nearby neighbor also, distribute relative. I mean, we have such great ideas. Even if you listen to that Shark Tank, people have such wonderful ideas. Our students need to get exposed to that. I mean, instead of spending their time only on the social media, Facebook, Insta and all that, I am not against that. But they must start thinking about it. Government is giving liberal loans and funds for startups, for many things. And India is leading in the world for these things now. India is leading in the world for this. And we need to, I'm so happy, ma'am, that you touched upon this aspect, not only for the jobs, for the placement, but for the placement, they can actually start up a unit and place the other students also in their startups also. इसमें सर मैं एक ऐड करना चाहूंगी. अभी मैंने आपको बताया था ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो अभी मेरा पेपर प्रेजेंट हुआ था, मैंने बताया था स्किल सस्टेनेबिलिटी, स्किल्स ओरिएंटेड, वो सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड कोर्सेज. सो आई गॉट द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड. सो उसमें से मैंने स्लाइड ये यहाँ डाली है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. वेल फ्रेंड्स, आई वुड से दैट व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन द वैल्यू addition courses for your college for a particular branch, you will find it sometimes hard, but then these kind of inputs will come very handy. They do not require much effort to sustain, because there are many volunteers who will come forward to you and do these programs for you, and the students placement will definitely enhance. जैसे मैडम ने नाम लिया आपके स्टूडेंट ने, जब मैम, लेट मी जस्ट शेयर वन थिंग. महक, व्हेन शी वाज डूइंग हर बीटेक इन बिट्स Pilani, BTech and MSc Mathematics, she never wasted a single day on the vacation. When she had vacation, she will either go to CSIO, IIT. Every day evening, when the college closes, they have a Siri मैडम Pilani के अंदर ही है. CSIO का एक रिसर्च सेंटर वहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स का. Every single day she used to spend about 3 to 4 hours on the research project. With some, this was not part of her curriculum. उसका कोई credit नहीं था. But the credit she got was, she got the placement in Qualcomm. She got the placement in Synopsys. She got the placement in Apple. She got the place. She had to choose which industry she want to go when there is no placement for the electronics engineers nowadays. I mean, वो करिकुलम में रिफ्लेक्ट नहीं होता, बट देन वो आपकी प्लेसमेंट में, आपके करियर में रिफ्लेक्ट होती हैं वो चीज़ें, व्हेन इफ यू आर एबल टू मेंटर योर स्टूडेंट्स.